Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. As you know that I teach quantitative aptitude, logical reasoning and advanced maths for all those students who are preparing for the competitive exam. तो आप कोई भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हो, चाहे वो MBA का exam हो, MCA, NIMSET, fashion designing, IP MET, if you are preparing for any competitive exam, then this platform, this module is for you. Today we are going to discuss an important topic of algebra and the name of the topic is quadratic equation. So इस टॉपिक में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. So first let me share the screen with you. So this topic quadratic equation, it's a part of advanced math. In this we are going to this particular topic we have divided into 4 different lectures. In the today's module we are going to discuss, first we will see what is quadratic equation. We'll have the introduction to the quadratic equation and the questions related to that. In the class 2 we will understand the roots of quadratic equation and the nature of roots of the quadratic equation and the questions related to that. Third, we will go to the advanced level part of the quadratic equation, wherein we will discuss about the maximum and minimum value of quadratic equation. And in the class 4, we will solve some moderate level questions of the टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आज के मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसके बेसिकली उसके रूट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो आज के मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे, दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम and product of the roots of quadratic equation and definitely the questions related to this concept. Okay, तो पहली बात तो quadratic equation होता क्या है. So quadratic equation are basically it's a second degree algebraic expression. It's a second degree equation and it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Now, what is the meaning of this word second degree? यहाँ पर ये जो टर्म होते हैं ना, उसका मैक्सिमम पावर जो होता है वो 2 होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से कि 2x plus 3 is equal to 0. इफ समवन आस्क यू कि is this an quadratic equation, तो आपका आंसर होगा no. Why? Because here you can see कि this term 2x is a term which contains variable and the power of x is 1. कुछ भी नहीं है, मतलब power of x is 1. Such type of equation is called as linear equation. क्या बोलेंगे इसको? Linear equation. So what is a quadratic equation? Here the degree of this term is should be 2. For an example, if I write here that x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Is this a quadratic equation? So yes, this is a quadratic equation because here the degree of this particular term is 2 and hence this is a second degree algebraic expression. So this is a basically इसको हमने quadratic equation कह सकते हैं. Now quadratic equation को लिखने का एक standard form है ax square plus bx plus c is equal to 0. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, wherein what is a? So a is nothing but the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is equal to constant. ये तीन जो नंबर्स है ए बी सी, बेसिकली दिस आर द वैल्यूज. ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, x का कोएफिशिएंट इज b and c is a constant. So basically this a b c are the real numbers and a b c में कौन जीरो हो सकता है, कौन जीरो नहीं हो सकता है. लेट्स सी दैट. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई से कि x square plus 4x is equal to 0. Is this a quadratic equation? अभी आप इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर c की वैल्यू 0 है. c वाला ये जो टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, ये मिसिंग है इसमें. इट मींस कि c is equal to 0. So can we say that this is a quadratic equation? Yes, this is a quadratic equation. It means कि in a quadratic equation c can be equal to 0. एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सपोज दिस इज एन इक्वेशन. नाउ इस इक्वेशन में आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है,
बट ये x वाला टर्म नहीं है. इट मीन्स दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन b इज इक्वल टू 0. तो क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? यस, डेफिनेटली इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं. अच्छा, एक और इक्वेशन अगर हम लिखे, फॉर एन एग्जांपल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर इज दिस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आप इस इक्वेशन में देखोगे तो b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, both of them are 0. तो can we say this is a quadratic equation? Yes, this is still a quadratic equation. It means in a quadratic equation c can be equal to 0, b can be equal to 0, both b and c can also be equal to 0. लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं a को 0 बना दे, इसको अगर हम 0 बना दे, तो कहना इसे ये तो पूरा टर्म ही निकल जाएगा. और ये निकल गया तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? नो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सो कैन वी से कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये a जो है इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0. तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है तो इसका मतलब है कि साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि a कैनॉट बी इक्वल टू 0. चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, a 0 नहीं हो सकता. b and c can be 0, b and c together can be 0, but a cannot be equal to 0. ये क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी गई है, मतलब ये है कि a 0 नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो वर्ड है रूट्स, उसका मतलब क्या होता है? So for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, the values of x that satisfy the equation are known as its roots. तो अगर इस इक्वेशन में सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप x की कोई वैल्यू डालो, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये 0 बनेगा. जरूरी नहीं है कि आप कोई भी x डाल दोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा. कुछ ही वैल्यू x की होगी जहां पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको 0 देगा. दिस वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x की कोई वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं. कितने? मैक्सिमम 2 रूट्स. ये x स्क्वायर है तो मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे. The roots of the quadratic equation are generally represented by the symbols alpha and beta. जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा ही हर बार लिखा जाए, बट जनरली अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. Now, how to find the roots of the quadratic equation? So, there are various methods through which you can find the roots of the quadratic equation. First is called as the factoring. This is also called as the splitting the middle term. This for every quadratic equation, it is not possible to split the middle term. So, wherever it is possible, we will use this method. This is the best method. Second, there is a formula through which you can find the roots of the equation. Third is completing the square, and fourth is definitely advanced level math में graph तो होते ही है. So with the help of graph also you can find the roots of the quadratic equation. सबसे बेस्ट मेथड होता है रूट्स निकालने का factoring. So wherever possible we will use this method only to find the roots of the quadratic equation. Now तो जैसे मैंने बताया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा. कितने रूट्स है? अल्फा एंड बीटा. इट मींस दैट इफ यू पुट x is equal to alpha in this equation, then LHS will become RHS. Or if you put x is equal to beta, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. मीन्स for this particular equation, x is equal to alpha or x is equal to beta. So from this, can we say that x minus alpha is equal to 0 or x minus beta is equal to 0? ये हम कह सकते हैं. yes, definitely. अच्छा जी, from this can we say that x minus alpha
इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दो में से एक तो 0 है ही, या तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा। तो कैन वी से कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये दो एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन भी 0 हो गया तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी ओपन दिस ब्रैकेट देन इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम थोड़ा डेकोरेटेड फॉर्म में लिखे तो वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha beta is equal to 0. What does this mean? This means that suppose there is a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, and suppose this quadratic equation has the roots alpha and beta, then this quadratic equation can also be written as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द रूट्स, ऐसे लिख सकते हैं, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, this is equal to 0. Very very important. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. परफेक्ट। अच्छा जी, अभी ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इस इक्वेशन में भी हम एक्स स्क्वायर लेके आते हैं, तो ये ए को डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अगर हम ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो कैन वी से दैट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो पूरे स्लाइड में से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट into x plus product of root is equal to 0, and we can write the equation like this also, wherein the sum of root is alpha plus beta which is equal to minus b upon a, and product of the roots is alpha into beta which is equal to c upon a. very very important. ये फॉर्मूला वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए। ओके जी, इन शॉर्ट अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं तो क्या हम वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये रूट से अल्फा एंड बीटा, तो यहां से हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट केस में द टू रूट्स आर 2 and 3, तो लेट अस अज्यूम कि अल्फा 2 है और बीटा 3 है, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर, दोनों का सम -2 -3 का सम -5, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 5, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2 इंटू -3 इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो, अगर हमें रूट्स दिए हैं तो हम वहां से उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर 2 प्लस -3 इज -1, -1 में साइन चेंज करोगे तो प्लस एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स, एंड 2 इंटू -3 इज -6, सो -6 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा का वैल्यू डाल रहे हैं। नेक्स्ट, -2 + 3 is +1 बन जाएगा -x, and this is also -6 is equal to 0। ठीक है,
चलिए, तो बेसिकली अगर हमें रूट्स दिए हैं तो यहां से हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं. Okay. Next, find the quadratic equation whose roots are 2 plus 3 and 2 minus 3. मतलब ये alpha है 2 plus root 3 and 2 minus root 3 and this is beta. So what is alpha plus beta? Is nothing but 2 plus root 3 plus 2 minus root 3. So it is 4. And what is alpha into beta? So that is equal to 2 plus root 3 2 minus root 3. This is of the form a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So that is equal to 2 का square, which is 4, minus root 3 का square is 3. So that is equal to 1. ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, मतलब अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखे तो ऐसा है ना इक्वेशन. So x square alpha plus beta is 4, so it is minus 4x, and alpha into beta is 1, so plus 1 is equal to 0. Option C is the correct answer. Find this sum and the product of the roots of the equation. मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, sum of the roots यानी कि alpha plus beta and product of the roots means alpha into beta. We know that alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसको हमें ax square plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्म में लेके आना है. From that we will get the value of a, b and c. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस विल बिकम 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसको अगर हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो I can say कि a is equal to 2, b is equal to minus 5 and c is equal to 2. So what is alpha plus beta? That is equal to minus b upon a, that is equal to 5 by 2, and alpha into beta is equal to c upon a, that is equal to 2 upon 2, that is equal to 1. So answer is option C, 5 by 2, 1. ठीक है जी. तो ये इक्वेशन अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं तो बिल्कुल अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते तो यहाँ से अल्फा बीटा आता, फिर वहां से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी निकाला जा सकता था, बट इतना मेहनत नहीं करना है. सम पूछा है तो सीधा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए. नेक्स्ट, टू नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन 9 and geometric mean 4, then these two numbers are the roots of the quadratic equation out of this form. तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन 9 है, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस टू नंबर्स आर a एंड b. ये जो दो दो रूट्स है उसको हम a एंड b नहीं बोलते क्योंकि ये रूट्स है, तो हम इसको हम अल्फा और बीटा बोलते. तो एक अल्फा है दूसरा बीटा है एंड इनका अरिथमेटिक मीन 9 है. अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 9. It means कि alpha plus beta is equal to 18. And geometric mean 4 है. geometric mean 4 होने का मतलब है कि alpha into beta is equal to geometric mean का स्क्वायर. So, alpha into beta ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16. सो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया. सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 18x प्लस product of roots. This is the answer. Option B is the correct answer. Next, one root of, there is one quadratic equation given and uska one root 2 है, find the value of 2. Now since इसका एक रूट 2 है, इट मींस कि x is equal to अगर आप 2 डालोगे तो ये LHS and RHS will become equal. It will satisfy the equation. So what we need to do is put the value of x as 2. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, k into 2 का स्क्वायर this is the answer 1 by 4.
ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. नेक्स्ट, x is equal to 2 and x is equal to minus 3 by 2 are the roots of the equation. Find the value of k and m. तो x के दो रूट्स दिए हैं. इट मीन्स कि x की ये दोनों वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट पुट x is equal to 2. So this equation will become एक इक्वेशन ये बन गया 2k plus m is equal to 8. This is this is first. ठीक है. नाउ इफ वी पुट x is equal to minus 3 by 2 तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 9/2 पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट विल गेट इज 9 plus 3k minus 2m is equal to 0. ठीक है जी. फ्रॉम दिस आई कैन से कि 2m is equal to 3k plus 9. 2m is equal to 3k plus 9 और यहां से आ रहा है 2k plus m is equal to 8. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू हियर इज इस इक्वेशन को डबल कर देते ताकि हमें 2m मिल जाए. सो दिस इक्वेशन का डबल इज 4k plus 2m is equal to 16. 2m की जगह पे वी विल राइट 3k plus 9. k का वैल्यू आ गया 1. सो k का वैल्यू 1 है. एक ही ऑप्शन है जहां पर k की वैल्यू 1 है. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन सी 1,6. इसमें अगर हम k की वैल्यू डाल देंगे तो m भी मिल जाएगा. So 2 plus m is equal to 8. So m is equal to 6. Correct. So option C is the correct answer. Next. For what value of p this equation is exactly divisible by x minus 1? निम्न से 2021 का ये क्वेश्चन है. यानी कि इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है x minus 1 से. तो आपको बताना है कि ये x minus 1 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. उसके लिए ये p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट मींस कि x minus 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. और क्योंकि ये फैक्टर है, इट मींस कि इफ वी पुट x is equal to 1, so that is one of the roots of the equation. If x minus 1 is the factor of the equation, then x is equal to 1 is one of the roots of the equation. So what we need to do in such type of question is put x is equal to 1. You will get the value of p. So -3 minus 9. Answer is 4. तो p का if we put p is equal to 4, then this equation is completely divisible by x minus 1. ये हमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये completely divide हो रहा है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बनेगा. रिमाइंडर there is no remainder and hence here I have put this as 0. ठीक है. So in this video we learnt about the introduction. We understand कि हमें ये समझ में आया, we understood कि quadratic equation होते क्या है और उसके sum of roots and product of roots के बारे में हमने पढ़ा. Next में we will see how to find the roots of the quadratic equation by different methods, and also very important part that we will understand the nature of the roots.
टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो की वजह से आपकी मैथ की जर्नी में कुछ फायदा हुआ है, इस वीडियो की वजह से आपको कुछ फायदा हुआ, आपको कुछ और चीजें अच्छे से समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू वेरी मच।